विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्श्री श्रीमान Islamic Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. ISKCON BVD Founder Acharya Srila Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakaacharya Astottara Satshri Shriman Islamic Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai.
समवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaur Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Krishnaya Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya. Devaki Nandanaya cha. Devaki Nandanaya cha. Nanda Gopa Kumaraya. Nanda Kumaraya. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. Nashtaprayeshu Bhadreshu. Nashtaprayeshu Abhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Sloke. Bhagavati Uttama Sloke. Bhaktir Bhavati Naishtuti. Bhakti Bhavati Naistiki. आज हम दूसरा स्कंद भागवतम 8वां अध्याय से 14 नंबर का जो श्लोक है उसके पर थोड़ा चर्चा करेंगे। यस्मिन् कर्म समावायो यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपपाद्यते येनोपपाद्यते गुणानां गुणिनां चैव गुणानां गुणिनां चैव परिणामाम् अभीप्सताम्। परिणामाम् अभीप्सताम्। Translation. Then again kindly describe how the proportionate accumulation of the reaction resulting from the different modes of material nature act upon the desiring living being, promoting or degrading him among the different species of life, beginning from the demigods down to the most insignificant creatures. Purported by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The actions and the reactions of all works in the material modes of nature, either in the minute form or in the gigantic form, are accumulated, and thus the result of such accumulated actions and reactions of karma or work become manifested in the same proportion. How such actions and reactions take place, what the different procedures are, and in what proportion they act on all subject matters of Maharaj Parikshit's inquiries from the great Brahmana Sukadeva Goswami. Life in the higher planets, known as the abodes of the denizens of heaven, is obtained not by the strength of spacecraft, as is now being contemplated by the inexperienced scientists, but by works done in the mode of goodness. Even on the very planet where we are now living, there are restrictions about the entrance of foreigners into a country where the citizens are more prosperous. For example, the American government has many restrictions for the entrance of foreigners from less prosperous countries. The reason is that Americans do not wish to share their prosperity with any foreigner who has not qualified himself as a citizen of America. Similarly, the same mentality is prevailing in every other planet where there are more intelligent living beings residing.
The higher planetary living conditions are all in the mode of goodness, and anyone desiring to enter the higher planets like the moon, sun, and the Venus must qualify thoroughly by the activity in complete goodness. Maharaj Parikshit's inquiries are on the basis of proportion actions of goodness which qualify one in this planet to be promoted to the highest regions of the universe. Even on this planet of our present residence, one cannot achieve a good position within the social order without being qualified with proportionate good work. One cannot possibly sit on the chair of a high court judge without being qualified for the post. Similarly, one cannot enter into the higher planetary systems without being qualified by good works in this life. Persons addicted to the habits of passion and ignorance have no chance of entering in the higher planetary system simply by an electronic mechanism. According to the statements of the Bhagavad Gita 9.25, persons trying to qualify themselves for the promotion to the higher heavenly planets can go there. Similarly, persons trying for the Pitralokas can go there. Similarly, persons trying to improve the conditions on this earth can also do that. And persons who engage in going back home, back to Godhead can achieve that result. The various actions and reactions of work in the mode of goodness are generally known as pious work with devotional service, culture of knowledge with devotional service, mystic powers with devotional service, and at last, devotional service unmixed with any other varieties of goodness. This unmixed devotional service is transcendental and is called Parabhakti. It alone can promote a person to the transcendental kingdom of God. Such a transcendental kingdom is not a myth, but is as factual as the moon. One must have transcendental qualities to understand the kingdom of God and God Himself. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कम करोति पापं वन्दे यत्कृपातम हम वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं श्री चैतन्य ईश्वर परमानंद हरे कृष्ण। ऐसा लग रहा है मैं एस्ट्रोनॉमर सॉरी, क्योंकि बताते हैं ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो कभी कभी हमारे साइंटिफिक नॉलेज, हमारे लिमिटेड नॉलेज से जो बनाते हैं वो कभी भी धोखा दे सकता है, तो क्योंकि ये मनुष्य ने बनाया हुआ है। पर ये भागवतम जब सौनक ऋषि नहीं सुत गोस्वामी और ऑलमोस्ट 10,000 सभी संत महापुरुष नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए थे। उस समय उनके पास कोई माइक सिस्टम नहीं था, फिर भी उनकी उत्साह पूर्वक सभी लोगों को इतना उत्साह था कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, तो ये मॉडर्न इक्विपमेंट्स का कोई जरूरत नहीं था। तो उसी तरह ये अगर माइक चले या ना चले, ये हमारा कृष्ण भक्ति की रुकावट नहीं है। कृष्ण भक्ति की उत्साह ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग सभी आमंत्रित इस सभा में आए हैं, ये आपके उत्साह पूर्वक ये बाकी लोगों को प्रोत्साह देता है। तो आज हालांकि मंगलवार कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे भक्त लोग तीर्थ स्थल पे गए हैं। यह हमारे अति सौभाग्य है कि हालांकि हम नहीं जा पाए, पर ये हमारे जो सहपाठी और जितने भी हमारे गुरु भाई हैं, हमारे भर उन लोग जाकर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये हमारा सौभाग्य है कि भक्तों के साथ संग करने में, अगर हम भगवान की तीर्थ स्थल में नहीं जा पाए पर किसी कारणवश, पर हमारे गुरु भाई या गुरु बहन उनको बता देंगे कि हमारे लिए आप प्रार्थना कीजिएगा, तो बोले जरूर, हम जरूर याद करेंगे। और भगवान की असीम कृपा की वजह से ये जो महीना चल रहा है, और ये जनवरी माघ महीना, जिसमें हमारे अति सौभाग्य है कि अभी प्रयागराज में थोड़े दिनों में इनफैक्ट शुरू हो चुका है कुंभ मेला का, जहाँ पे भगवान की वो जो लीला घटी थी, जहाँ सभी देव देवगण और अन्य देवता और बाकी जो असुर कुल के व्यक्ति ये समुद्र मंथन करने के लिए तैयार थे। ये कहानी हुआ था सत्य युग में। तो उस समय वो जो अमृत जो लेकर जो राक्षस भाग जाते हैं, उस समय उसको धनवंतरी जब आ जाते हैं, वही उसका 3 भूत 3 स्थल पे गिर जाता है। एक है प्रयाग, एक उज्जैन और दूसरा है नासिक। और ये 12 वर्ष या उसके समय के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के हिसाब से वो बताते कि संगम जो गंगा यमुना सरस्वती के बीच में उत्पन्न हो जाता है, उसको कुंभ मेला कहते हैं। तो ये कोई काल्पनिक विचार नहीं है, पर ये शास्त्र के आधार पूर्वक ये
ये बताते कि ये महोत्सव को मनाया जाता है और उस समय सभी लोग बताते अलग अलग प्रकार के विचार विमर्श के वक्त जो सनातन धर्म का पालन करते हैं वो इस कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं ताकि उनके सभी प्रकार से जगह जैसे कभी बोलते कि पाप धुल जाए या कोई अलग अलग विचार कोई बोलते मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो भारतवर्ष में जन्म लेने के हमारे अति सौभाग्य है कि हम अगर नहीं जा पाए तो यहाँ ही उस लीला को स्मरण करते हम ऑलमोस्ट बताते कि उस त्रिवेणी संगम में स्नान के सम्मानी है। तो आज हम इस श्रीमद् भागवतम में पहला बात तो ये 2025 में हम सभी भक्तों को हृदयपूर्वक इस नववर्ष नया वर्ष के लिए आपको आध्यात्मिक और भक्ति में और आपकी प्रगति होए ये मेरा नम्र निवेदन है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कृष्ण भक्ति में और तेज से आप भक्ति में और बताते कि तीव्रता पूर्वक उसको सीरियसली लीजिए क्योंकि भगवान ने हमें और एक वर्ष या अवसर दे दिया है ताकि हम कृष्ण भक्ति में और सीरियसली ले सकते हैं क्योंकि हालांकि भारतवर्ष में इसको इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। इंग्लिश कैलेंडर में इसको न्यू ईयर बोला जाता है पर सभी धर्मों को बताते कि सम्मान देते और भक्तों को सिर्फ एक बताते कि एक कारण कोई कारण मिलना चाहिए जिससे वो भक्ति में और प्रगति कर सकते। इसलिए कभी कभी बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के बोलते कि रेजोल्यूशन लेते हैं रेजोल्यूशन कि ये साल से मैं एकदम सीरियस बनूंगा या कभी कभी बोलते कि ये साल से मैं एकदम अच्छा आदमी बनूंगा अच्छा इंसान बनने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छी बात है पर प्रॉब्लम होता है कि साल के एंड में 31st नाइट इतना पता नहीं इतना खराब हो जाता है कि शुरुआत का दिन ही एकदम बोलते कि अरे यार ये क्या हुआ हो रहा था आज अच्छा। और कभी कभी आजकल अभी बताते कि प्रेजेंट सिनारियो में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पहला दिन बताते कि फर्स्ट मैंने देखा सभी मंदिर जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा राधा गोविंद जी मंदिर पूरा भर गया था चकाचौंध। राधा रास बिहारी जी राधा गोपीनाथ सभी 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 सिद्धि विनायक मंदिर महालक्ष्मी सभी मंदिर बहुत अच्छी दृश्य है। लोगों को सनातन भक्ति में बहुत रुचि आ रही है और स्पेशली नवयुवक बताते कि इसका कारण क्या है। बताते कि कभी कभी ऐसा बोलते कि ये जैसे भक्ति आध्यात्मिक में रुचि रखने का कोई समय आ जाता है जैसे पेंडुलम के जैसे भोग त्याग। तो अभी किस अवस्था स्थिति के वजह से इवन पॉलिटिकल सिचुएशन या लीडर्स ऐसे इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं कि सभी लोग चाहते हैं कि यस मैं भी सनातनी हूँ आई ऑल्सो वांट टू बिकम अ डिवोटी वेरी गुड। बट मेन है कि इसको कंसिस्टेंट रखना इसको एकाग्रता से लेकर दिन नित्य इसको पालन करना उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है उसको वो हमारा टेस्ट है। एक्चुअली शपथ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है शपथ का पालन करना वो महत्व है। शपथ तो कोई भी ले सकता हो कि पर शपथ का दिन नित्य निर्बंध करना उसका पालन करना ये हमारा सबसे बड़ा चुनौती है। तो इसलिए जिसने भरोसा किया इवन कोई एटलीस्ट इट इज बेटर देन नॉट डूइंग समथिंग इज बेटर देन नॉट डूइंग। इसलिए एटलीस्ट एक स्टेप भी हम भगवान की तरफ लेते तो भगवान स्मरण करते हैं एटलीस्ट इसने प्रयास तो किया इच्छा तो किया। सो इसलिए मेरा और हमेशा सभी व्यक्तियों का हमारा एक ही निवेदन है कि ये उत्साह को जिसने ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया उसका फायदा है क्योंकि ये समय ज्यादा समय नहीं रुकेगा। बोलते द गोल्डन एरा डजंट स्टे फॉर लॉन्ग। दोज हु आर know the value of devotional service they will take it very seriously because इस भौतिक दुनिया में कोई भी चीज ज्यादा समय नहीं रुकता है। बोलते ना कभी कभी आप लोग देखते हो मॉल में या कोई बड़े देखो एक जैसे सेल रहता है सेल 50% सेल 80% सेल क्या हमेशा रहता है नहीं
वो सिर्फ कभी कभी बोल देना स्टॉक आइटम निकालना है तो तभी सेल उसका, पर जो व्यक्ति वो टाइम में यूज किया उसको बेनिफिट है, हमेशा तो नहीं रहता है। उसी तरह ये भक्ति जो श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आए हैं, बताते कि अभी भी 4,32,000 ईयर्स, 4,32,000 साल कलयुग का पीरियड है, उसमें से सिर्फ 5,000 साल ही चले गया है। इसलिए कलयुग अब तक पूरा पीक नहीं है, पर कभी कभी हम देखते हैं कि इतना सारा बता दें कि भ्रष्टाचार, इतना सारा कलयुग में लोग का व्यवहार, तो हम सोचते हैं कि और क्या आने वाला है, इससे और वर्स्ट क्या आने वाला है। शास्त्र बताते कि सबर रखना चाहिए, पेशेंस, और वर्स्ट है, हमारे सोच से भी ज्यादा सिचुएशन और भी वर्स्ट है। इसलिए हमें इच्छा भी नहीं होना चाहिए कि इससे भी बदतर क्या होने वाला है। हमारा जो ये समय है, द गिवन पीरियड, जो टाइम अभी दिया है, द गोल्डन पीरियड, बेटर यूज इट एंड फिनिश योर बिजनेस एंड गेट आउट। जितना हमें समय दिया है ये कलयुग में, इसको जितना ज्यादा बेस्ट से बेस्ट आप यूज कर सकते हो उसको यूज करो और निकल जाओ। दिस इज इंटेलिजेंस। ये नहीं कि हम चलेगा वापस आना ही है ना, थोड़ा भक्ति करेंगे वापस, देयर इज नो गारंटीड, देयर इज नो गारंटी। इसलिए प्रभुपाद एक बार बता रहे थे, एक बार प्रभुपाद के शिष्य बता रहे थे, प्रभुपाद अगर भक्ति पूरा नहीं हुआ तो फिर चलेगा ना, दूसरा जन्म भक्तों के जन्म में होगा ना। तो प्रभुपाद बोलते दैट इज ट्रू, होता है, पर देयर इज नो गारंटीड कि यही माहौल मिलेगा आपको। आज तो हम लोग ऐसे बैठ के आराम से भगवान का जाप भी करते हैं। जैसे मैं मंदिर में प्रवेश किया, वरद निताय प्रभु इतने ब्यूटीफुली, इतने वो देख आनंद पूर्वक गौर के जैसे गौर कीर्तन, वो संध्या आरती कर रहे थे। तो ये एटमॉस्फेयर इतना है कि पृथ्वी आचार्य नगर अधिक्रम सर्वत्र प्रचार हो ही माना। ये सिचुएशन जरूरी नहीं है कि थोड़े समय ऐसे ही रहेगा, इट इज देयर, यू यूज इट। क्योंकि आज तो हमें ये फैसिलिटी है, कल पता नहीं ये अवसर मिलेगा कि नहीं। इसलिए जितना अपना सिंसियरिटी है, सीरियसनेस है, हमें भगवान का नाम और भक्ति को सीरियसली लेना चाहिए और बाकी उनके ऊपर छोड़ देना है। यह है कि यही समझ के करना चाहिए कि भगवान आज आपने दिया, अगर इसको मैं उतना महत्व नहीं दिया तो एक दिन मुझे ऐसे स्थिति मिल सकता है जहां मुझे इसका महत्व सिखाने के लिए आपको ऐसे परिस्थिति में आप डाल सकते हो। सो बेटर यूटिलिटी एवरी मोमेंट, हर मोमेंट वी हैव टू यूज इन सर्विस ऑफ कृष्णा, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं ना, भक्तों की दिस वैष्णव सभा, इतना बड़ा वृंदावन सोसाइटी, इतना बड़ा थाने में अगर ये प्रोपोर्शन रेशियो देगा तो नॉट इवन 1%, 0.1% भी नहीं है। बट इसलिए भगवान बताते हैं इसमें भगवद गीता में वासुदेवं सर्वमिति सहमात्म सुदुर्लभः बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति सहमात्म सुदुर्लभः। एक्चुअली ये स्टेटमेंट को हमें संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। इट इज नॉट दैट ओके भगवान ने बोल दिया, वी शुड हैव द वैल्यू। ये हमें पता होना चाहिए, ये बहुत दुर्लभ है। एक नाम लेना ये भगवान की असीम कृपा है, भगवान के भक्तों की असीम कृपा है। वन दंडवत, एक दंडवत भगवान के सामने देना, इसके लिए हमने कितने जन्म जन्मांतर का राह देखा, कितने 84 लाख युवनी गए हैं, किसके एक भक्तों की कृपा से मिला है। इसलिए जब जो भी हम लेते हैं, प्रसाद लेना, भक्तों के संग करना, भगवान का नाम जाप करना, इवन शास्त्र का अध्ययन करना, वी शुड नो द वैल्यू, इसका महत्व क्या है। अगर जो व्यक्ति इसको सीरियसली वैल्यू यानी ग्रेटफुल, कृतज्ञता रूप में अगर हम इस कृष्ण भक्ति को लेंगे तो तभी भगवान अंतरात्मा में हमें बताएंगे। अगर हमें ऐसे इसको चलो उसमें बड़ी बात क्या है, टेक इट फॉर ग्रांटेड, देन द लॉर्ड विल नॉट रेसिप्रोकेट। ये यथाम आपको बने तम सतैव वचन। इसलिए हम यही इच्छा करते हैं कि ये आने वाला जो 2025 हमें दिन नित्य भगवान हमें वही कृपा दे कि कैसे भी हम दिन और एवरी मोमेंट हम कैसे भक्ति में और प्रगति कर सकते हैं। लेट अस गो डीप इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस, एवरी डीप। क्योंकि अगर ये मनुष्य जीवन में हम लोग
आध्यात्म में ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे तो क्या हम बाकी अन्य पक्षी में जाएंगे? देयर इज नो चांस। उन लोगों को अवसर भी नहीं है भगवान का नाम लेना। नाउ यू गॉट इट, चैंट एवरी नेम विद ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता रूप हर नाम को लेना चाहिए। तो मैं आधा घंटा इसके ऊपर बताया, नो प्रॉब्लम, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। आज की इस श्लोक में जैसे मैं आपको पूछा, सबको पता होगा, अगर नहीं है तो भी ज्यादा क्वेश्चन आंसर नो प्रॉब्लम, आप मैं नहीं पूछूंगा। पर जैसे बताते कि मैं अभी दूसरा स्कंद भागवतम के बारे में बता रहा था, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। तो आज के प्रश्न वो पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे ये बताइए कि पुण्य और पाप कर्म में उसका क्या अंतर रहता है, और क्या पुण्य कर्म करना पड़ता है जिससे व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, या स्वर्ग के उसको भी परय करके भगवान के धाम में प्राप्त कर सकता है। एक्चुअली कभी कभी हम देखते हैं कृष्ण भक्ति में आने के बाद बोलते हैं शुरुआत में ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल, आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और भगवान परम देवोत्तम पुरुष कृष्ण ही है, और हमें बैक टू गॉड जाना ही है। पर थोड़ी टाइम के बाद, हम मोमेंट में रहने के बाद हमारा एक परीक्षा लिया जाता है। परीक्षा मतलब यही सब्जेक्ट वापस जब दोहराते हैं तो हम बोलते हैं कि प्रभु जी कुछ और कोई सब्जेक्ट है, इज देयर एनी अदर सब्जेक्ट? ये तो मैं सुन के मेरा कान तो पक गए। आई नो, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी चैंटेड, मैं तो जाप किया हो, अब तो पता चला मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। पता होने में और रियलाइज होने में जमीन आसमान का फर्क है। नॉलेज तो सब लोग के पास है, पाठशाला में सब लोग चले जाते हैं, पर थोड़ी विद्यार्थी उतना प्रयास करके फर्स्ट या सेकेंड आते। नॉलेज तो सबको पता है, हाँ पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, पर क्यों नहीं करते? इट्स वेरी बोरिंग। उसी तरह समझना और पता होना और समझने में जमीन आसमान का फर्क है। To know that you are not this body and to realize that you are not this body, there is like gulf of difference. इसलिए यहाँ पे जब हम सोचते हैं, कोई भी सोचता है अरे यार 7 दिन है परीक्षित महाराज को, और सुखदेव गोस्वामी ऐसे महापुरुष आए हैं, इनको तो सीधा बोलना चाहिए कि भगवान की कृष्ण के बारे में बताओ, ये सब क्या बात कर रहे हैं, ब्रह्मा जी के क्रिएशन बताओ, स्वर्ग और नरक में क्या फर्क है, पुण्य और पाप में क्या फर्क है, भगवान के दशावतार के बारे में कुछ भी मत छोड़िए, और मुझे बाकी भक्तों के बारे में कोई बोलते यार उतना तो समझो, टाइम मैनेजमेंट में तो ये सब बाद में 100 बार आप कृष्ण कथा ही सुनो ना। यहाँ पे प्रभुपाद एक अच्छा वाक्य बोलते हैं, एक्चुअली डिवोशनल सर्विस में ऐसा कुछ सब्जेक्ट नहीं कि दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप उतना महत्व नहीं है। जैसे मैं हमेशा बताया था लास्ट टाइम में, दयाल अवतार प्रभु के उद्देश्य में उनके उदाहरण देते कि वो गन्ने का जूस पिलाते सब लोगों को। गन्ना बता दे कि अगर जो समझदार है, इंटेलिजेंस मैन, वो किधर भी उसको छमाए तो मिठास ही है। ऐसा नहीं कि गन्ने का प्रमुख पार्ट में बहुत मिठास रहता है और पीछे के पार्ट में तो मिठास नहीं है, ऐसा तो नहीं है। उसी तरह भगवान की भक्ति के कोई भी मार्ग में, नवविधा भक्ति के कोई भी में ले लो, वो सभी महत्वपूर्ण है। भगवत गीता हो, चैतन्य चरितामृत हो, या श्रीमद् भागवतम हो। प्रॉब्लम क्या है, हमें रुचि क्यों नहीं आ रहा है, मतलब वो गन्ने का मिठास क्यों नहीं हो रहा है? गन्ने में गलती नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे में जॉन्डिस है, पीलिया हमें हो चुका है, इसलिए पीलिया होने के वजह से मिठास नहीं होता है। इसलिए कभी कभी वही कथा को वापस दोहराते हैं तो हम सोचते हैं कि यार नींद आ जाता है या बोरिंग है या समथिंग, कुछ उसको अलग करके बता दो।
That is not the purpose. मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये प्रॉब्लम क्या है? ये सुनते 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 हमारा ये जो पीलिया है, शुरुआत में जो जॉन्डिस पेशेंट है उसको अगर हम गन्ने का जूस पिलाते हो वो दवाई के समान है, पर उसको खड़वापन लगता है, नहीं अच्छा नहीं है। तो बोले प्रॉब्लम गन्ने में नहीं है, तुमको खड़वा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हारे में जॉन्डिस है। पर ये जब तुम पीते रहोगे तो तुम्हारा जॉन्डिस ये पीलिया निकल जाएगा और तभी तुम्हें उसका गन्ने का आस्वादन होगा। दैट मीन्स यू आर डिसीज्ड फ्री। उसी तरह ये भक्ति के मार्ग में अगर अनर्थ निवारण करना है, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन, कोई सब्स्टिट्यूट मार्ग नहीं है। अरे जाप को छोड़ के कोई दूसरा है क्या? कोई मार्ग 16 माला छोड़ के दूसरा कोई है क्या? देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर डिवोशनल गिवन एज पर द स्क्रिप्चर्स। हमें बोर लगता है, दैट इज नॉट द वे। हम थोड़ा सिलेबस को चेंज कर देंगे। यू मे प्रेजेंट इट इन डिफरेंट वे बट यू कैन नॉट चेंज। इसलिए प्रॉब्लम बोलते थे भगवद गीता एज इट इज। कभी कभी हम इतने सारे भगवद गीता, ये जो गीता जयंती में हम बोलते प्रॉपर बोल रहे थे, व्हाई सो मेनी एडिशंस? इतने सारे लोग भगवद गीता क्यों लिखे? क्योंकि अपना अपना बोलते ना, मेरे हिसाब से ये अच्छा ये है, मेरे हिसाब से कृष्ण ऐसा बोले। नो वन इज बॉदर्ड व्हाट कृष्णा वांट्स टू स्पीक। इसलिए प्रॉपर बोलते हैं यू कैन नॉट चेंज एज इट इज। हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर वो व्यक्ति को, इसलिए बोलते ना दृढ़ विश्वास के साथ ये जब भक्ति करेगा स्लो एंड स्टेडी, तो तभी उसको एक न दिन एक उसको उसका जो बोलते ना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए पेशेंस होना चाहिए, धैर्य, अदाउ श्रद्धा तथा साधुदंग तथा भजन क्रिया अनर्थ। तो धैर्य के साथ हमें इसको मार्ग में लेना चाहिए। तो इसलिए परीक्षित महाराज ये जब प्रश्न पूछ रहे, हालांकि सब इनिशियल सिचुएशन भक्ति के मार्ग में, ये क्रिएशन कैसा हुआ है, ब्रह्मा जी ने ये कैसा क्रिएट किया, मुझे सभी बता दो। क्योंकि जो व्यक्ति को भक्ति में रुचि है वो सभी सुनना चाहता है। देयर इज नो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड नॉट सो इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि कभी कभी लोग बता देना अपना ये सब शास्त्र का छोड़ दो, इज देयर एनी शॉर्टकट? कोई शॉर्टकट है बाकी प्लैनेटरी में जाने के लिए? इज देयर एनी शॉर्टकट? तो प्रॉपर ने एक अच्छा है, उन्होंने बोला अच्छा यू वांट अ शॉर्टकट, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, वेरी इजी। क्योंकि बहुत सारे, मैं जब छोटा था तो तभी एक रशिया या किसी ने एक स्पुतनिक बनाया था, स्पुतनिक उन लोग स्पेस जैसे कुछ लॉन्च करने वाले। सभी लोगों की इच्छा है, ये वैज्ञानिक लोगों को एक ही इच्छा है कि आओ बाकी प्लेनेट में क्या चल रहा है। इसलिए कभी कभी उनको बोलते हैं कि दे आर व्हाट यू कॉल द रेजिडेंट्स ऑफ द अदर प्लैनेट्स, एलियंस। उसके ऊपर हम अलग अलग हमारे काल्पनिक विचार करते हैं कि उन लोगों का मुंह ऐसा रहता है, और शास्त्र को, अरे शास्त्र छोड़ो बारे में, मेरे हिसाब से वहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे लाइफ प्लान नहीं है। मार्स और वीनस में तो लोग नहीं रह सकते, तो इसका मतलब उन लोगों का चेहरा कुछ अलग रहता है, और कभी कभी आ जाते हैं और बोलते ना लिटरली कॉन्कॉक्शन। प्रॉपर बता रहे थे कि एवरीथिंग इजी जर्नी, सब लोग जाना चाहते हैं। जैसे एक बार अमेरिका, आई थिंक आई डोंट नो विच ईयर, 1969 या 70, फर्स्ट मैन लैंडेड ऑन द मून, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसने उस टाइम सभी जगह पे, अभी तो एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, ज़्यादा टेक्नोलॉजी बड़ा नहीं था, अमेरिका एकदम फुल फ्लरिश में था। तो उस टाइम पता है, हाँ पहली बार चांद के ऊपर आदमी पहुंच गया, चांद के ऊपर, और किसी ने नहीं किया, सिर्फ अमेरिका ने किया है, तो बाकी कंट्री बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद अगर हम लोग बोल रहे थे कि ठीक है अभी तो सिर्फ आदमी गया, अभी हम लोग जाके उधर कॉलोनी बनाने वाले, इधर जिसको नहीं, जैसे बोलते ना प्रोग्रेस, जिसके पास ज्यादा दौलत है तो सब प्रोग्रेस,
जो थाने में रहता है वो चाहता है कि दादर में शिफ्ट हो, दादर वाला सोचता है कि मैं इधर साउथ बॉम्बे, मलबार एरिया, वाल्केश्वर में शिफ्ट, और वो वहां वाला सोचता है कि मैं इधर क्या इंडिया में अमेरिका में शिफ्ट हो, यूरोप में, अमेरिका में। तो यहाँ पे कि संतुष्टि कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इच्छा बराबर है, जीवात्मा की इच्छा बराबर है कैसे भी ऊपर जाना, बट ट्राइंग टू आर्टिफिशियली गो, आर्टिफिशियली हम कैसे भी उसी तरह बताते कि शास्त्र में बताते सिर्फ एक कलयुग में नहीं, ये जो वैज्ञानिक लोग प्रॉपर बताते कि आज के सो कॉल्ड डिमोनिक मेंटालिटी, ऑफ कोर्स ऑल रिस्पेक्ट्स, बट उनका उद्देश्य क्या है? पहले जैसे पहले के समय त्रेता युग और सत्ययुग में भी ऐसे वैज्ञानिक थे, हिरण्यकशिपु और रावण, उन लोग भी सोचे यार ये सब कौन करने वाला है, ना युग धर्म करने की क्या जरूरत है? नो युग धर्म, नथिंग, जिसको इच्छा है वो जा सकता है, नॉट रिक्वायर्ड ऑफ पायटी, इसका कोई जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं ना, इसे हिरण्यकशिपु जाके सभी लोगों कोई नहीं देगा, जो करना है सभी उल्टा करना चाहिए, जो मैं बोलता हूं वैसा, जो पुण्य वाले नरक में जाएंगे, पाप वाले ऊपर जाएंगे। डिमोनिक मेंटालिटी, पूरा बता दे, भगवान की जो रचना को चेंज करने वाले, इसको डिमोनिक बोलते हैं। जब भगवान शास्त्र में बोलते हैं, स्वयं भगवद गीता में जिसमें बोलते कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, और पितृयांति पितृवता देवांति पुत्र, जैसे जो आपकी इच्छा है, जो आप पुण्य कर्म के हिसाब से आप जा सकते हो। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो पूरे आप एंटायर भगवान की क्रिएशन को उलट पलट कर रहे, दैट इज नॉट अलाउड। तो उसी तरह यहाँ पे प्रॉपर एकदम क्लियरली तात्पर्य में बताते हैं, टू रीचिंग टू द हायर प्लैनेट्स, भगवान के या जो भी जैसे सत्य इस भूमंडल से अगर किसको महान जना तप सत्य लोक का प्राप्त होना है तो उसको पुण्य कर्म करना पड़ता है। एवरीवन नोस, अगर जो पुण्य कर्म किया तो तभी वो स्वर्ग का प्राप्ति होता है, इसके लिए तपस्या करना पड़ता है। ऐसे ही हम अपने आर्टिफिशियल मेथड से हम जा नहीं सकते हैं, इसलिए प्रॉपर एक उदाहरण देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो तो अगर इफ यू जस्ट के अमेरिकन एम्बेसी को हटा दो, मेरे पास पैसा है, आई विल गो टू अमेरिका, पहले बात तो लोग पूछेंगे यू हैव गॉट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, आपको बुलाया है क्या, आर यू क्वालिफाइड टू एंटर? क्योंकि प्रॉस्परस कंट्री जब प्रॉपर क्लियरली बोलते, दोज आर प्रॉस्परस कंट्रीज, दे आर वेरी पर्टिकुलर, जो आने वाले व्यक्ति के पास बराबर डॉक्यूमेंट्स हैं, वेदर इज क्वालिफाइड। अगर ये अर्थली प्लैनेट में जो भूमंडल में कोई दूसरा देश में जाने के लिए इतना सारा हमें डॉक्यूमेंट्स या हमारे पास योग्यता होना चाहिए, तो सोच लीजिए अगर हमें दूसरे भूमंडल या दूसरे कोई प्लैनेट में पहुंचना है तो हमारे पास कितना योग्यता होना चाहिए। इट इज नॉट इजी, आपके पास प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स है तभी आप जा सकते हो, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि जिसने प्रॉपर बता दी, इवन फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंपल जाके डॉक्टर बन गए, डॉक्टर के बेटा मैं डॉक्टर हूं चलो मैं करता हूं, नो, वेदर यू गॉट अ बोनाफाइड डिग्रीज, आप क्वालिफाइड हो, आपने वो कोर्स किया है, उसके बाद ही वो पोजीशन दिया जाता है। तो आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए या आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इतना हमें प्रयास करना पड़ता है, तो सोच लीजिए भौतिक ज्ञान के लिए और भौतिक प्राप्ति के लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ता है, तो आध्यात्मिक के लिए कितना करना पड़ेगा। इट इज नॉट आर्टिफिशियल, हमारी काल्पनिक विचार से नहीं है। इतने सारे जैसे जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमें करना पड़ता है, व्हाट इज गिवन इन द स्क्रिप्चर्स। तो यहाँ पे प्रॉपर फर्दर बताते हैं कि इवन भगवद गीता में ये पता है कि इसमें कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये जितना भी आप पुण्य पाप कर रहे हो, आप इस 14 लोकों में ही घूम रहे हो।
ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में ही घूम रहे हो। जब आपका पुण्य होता है तो आपको एलिवेशन किया जाता है, ओके यू बी देयर, हेवनली प्लैनेट्स में रुको। पर जब आपका पुण्य खत्म हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना योर बैटरी डिस्चार्ज हुआ, तो आपको वहां से निकाल दिया जाता है। जैसे इवन उसके बाद वापस यू आर बैक टू दिस स्क्वायर वन। जैसे आपने सांप सीढ़ी देखा होगा, आप कैसे भी एंडेवर करते करते ऊपर हुए और थोड़ा जैसे खत्म हो गया या कुछ भी मिस्टेक हुई, यू आर बैक टू स्क्वायर वन। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो चाहता है कि आई डोंट वांट टू रिटर्न बैक, मुझे यहां पे वापस आना नहीं है। आई डोंट वांट टू कम बैक। अब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। This is real transferring yourself to the spiritual world. सब लोग चाहते हैं I want to go to the other planet, but I don't want to return back. कभी कभी हम चाहते हैं ना पिकनिक के लिए, वैकेशन के लिए सिंगापुर या दुबई या मस्कत, बहुत अच्छा सीन है, और बाद में अच्छा लगता है यार इच्छा नहीं है, मुझे वापस नहीं आना है। वापस नहीं है, तुमको तो फोर्स है, बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइड टू स्टे देयर। उसी तरह जो पुण्य किया है वो आपको मिलेगा, पुण्य कर्म, पर वापस खत्म होने के बाद वापस तो आपको आना ही है। सो देन बुद्धिमान व्यक्ति हो, इंटेलिजेंट पर्सन विल सी लेट मी गो टू दैट प्लेस, वो जगह पे जाओ, मुझे वापस नहीं आना है। और वो सीक्रेट भगवत गीता में लिखा हुआ है। दैट इज व्हाट परीक्षित महाराज इज सेइंग। ये जो ज्ञान ही वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, उनको सबको देना है। दैट देयर इज अ प्लेस, वो जगह है जहां पे आपको वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्मा अब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो माम उपेत्य तु कौन्तेय। इसलिए प्रभुपाद उसका मेथड बताते हैं यहाँ पे, क्लियरली सेइंग ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, सिर्फ भक्ति के मार्ग में ही ये दाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। देयर इज नो अदर मेथड। इसलिए 18 चैप्टर भगवद गीता में कृष्ण बताते मन मनाभो मद भक्तो मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामोपि व्हाट इज दैट, मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। व्हाट जस्ट रीड एंड टेल मी, लेट मी नो। बता दे कि वो इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, जो मेरा हमेशा याद रखते हैं और जो हमेशा मेरे स्मरण करते हैं, ही अलोन कैन अटेन मी, वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है, मेरे धाम में वापस आ सकता है, ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। इसलिए ये जो मार्ग हमें मिला है, गॉट द वर्स, मामेवैश्यस्य सत्यते प्रतिजानि प्रियोषमी, मामेवैश्य सत्यम ते प्रतिजानि प्रियोषमी। सिर्फ मुझे स्मरण करो, मेरे आराधना करो, मुझे नमस्कार करो। In that you can attain me without fail. You will attain me without fail. प्रभुपाद बताते कि the highest perfection of human life, ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट है और शास्त्र का स्टेटमेंट, the highest perfection of human life is to go back home, back to Godhead. इससे उत्तम कोई है ही नहीं है। बोलते हैं जीवन का सबसे उत्तम लक्ष्य क्या है? To return back to a spiritual world. इसके लिए उतना सुलभ नहीं है, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। इट इज नॉट सो इजी। लिखने के लिए बहुत सुलभ है, ओ द हाईएस्ट परफेक्शन, गो बैक होम बैक टू गॉड, पर कितना प्रयास करना पड़ता है। और प्रयास क्या है? व्हेन यू डू दिस डिवोशनल सर्विस। इसलिए प्रभुपाद बोलते ओनली प्रोसेस इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्तों के संग में आना, हियरिंग कृष्णा's होली नेम, डेवलपिंग लव फॉर कृष्णा। What is devotion? भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब क्या है? बोलते ना हाँ ठीक है मुझे भक्ति है, I have got भक्ति। भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब to develop love for Krishna. That is devotion. किसी के प्रति आप प्रेम या सेवा करना चाहते हो, उसके प्रति आपको लगाव आना चाहिए। अगर वो व्यक्ति को लगाव नहीं आता है तो वो उसका सेवा नहीं करता है। और भौतिक लगाव है वो थोड़े समय के लिए रहता है, पर जो आध्यात्मिक लगाव रहता है
वो संतुष्टि प्रदान करता है. इट गिव्स आनंदम, इट गिव्स सैटिस्फैक्शन टू द सोल. बाकी कोई भी रिलेशन हो, कुछ भी हो, वो कितना बोले तो भी तात्कालिक है. थोड़ा समय हम सेवा करते हैं, जो भी हमारे माता पिता या जो भी है, या हमारे पति पत्नी या जो बच्चों का, पर थोड़े समय के बाद बता देना थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है, और कभी कभी बोल देना फ्रिक्शंस या, क्योंकि एक्चुअली स्पिरिट कैनॉट बी सेटिस्फाइड विद मैटर. ये क्यों होता है, डिससैटिस्फैक्शन क्यों आता है? क्योंकि हम शरीर को समझने की वजह से हमें डिससैटिस्फैक्शन आता है. पर जब हमें पता चलता है हम स्पिरिचुअल है, हम स्पिरिट है, स्पिरिट कैनॉट बी हैप्पी विद द हेल्प ऑफ मैटर. वो स्पिरिचुअल है, सच्चित आनंद. ये सच्चित आनंद को आप असच्चित दुरानंद और मतलब उसके साथ जब आप जोड़ेंगे तो उसको कभी आनंद प्रदान नहीं होता है. When spiritual comes with the spirit, then only it will be happy. वो बता देना, मछली पानी से आप कितना भी उसको बाहर निकाल के उसको बहुत सारा प्रदान करो, एयर कंडीशन में रखो, या उसको बोल देना जेवर डाल दो, या उसको अच्छा सा प्लेट में रख दो, या उसको बहुत सारा कंफर्ट दे दो, हवा डाल, मछली को तो पानी चाहिए. उसी तरह जितना भी बॉडीली कंफर्ट्स हम देंगे, देयर इज अ डीप वैक्यूम फॉर द सोल. वो कुछ ना कुछ एक वैक्यूम है which cannot be filled other than the spirituality. Spirit only requires spiritual. हम कितना भी आर्टिफिशियली हैप्पी हम सोचते हैं ऐसा करें तो आनंद रहेगा, दैट इज तात्कालिक प्लेजर. If I get admission in this, I'll be happy. If I become something great, I'll be happy. That is temporary pleasure. Satisfaction for the soul can be only attained by spirituality. It is a deadline instruction in the scriptures. ये deep rooted है. इसके लिए हमारा प्रयास है. इसके लिए हमें प्रयास है to realize that spirit cannot be satisfied with matter. हम सोचते हैं, हमारी बहुत सारा विचार थे, अगर ये प्राप्त होता तो हमें आनंद होता. अगर प्राप्त होने के बाद भी देयर इज नो गारंटी दैट यू विल बी हैप्पी. इसलिए जब ये स्पिरिचुअलिटी व्यक्ति को मिल जाता है तो तभी वो इस संतुष्ट सिद्ध प्रज्ञा का भाषा इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड. तो प्रभुपाद बताते हैं, हाउ डू यू नो, कैसे आपको पता चलता है? यू आस्क अ पर्सन हु इज हैप्पी. जैसे बोलते ना, The taste of the pudding is by eating. आप कितना भी बोलो इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, आप लेते रहो बहुत. जब तक हम स्वयं प्रयास करके चखना नहीं चाहते हैं तो तब तक आनंद का आस्वादन नहीं कर पाएंगे. We have to strive. कृष्ण कॉन्शियस, इसलिए प्रभुपाद बताते थे, chant Hare Krishna and be happy. Is it so easy? You chant Hare Krishna, अब इतने साल से, and are we happy? चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी के बीच में बड़ा अंतर है. इट इज स्ट्रगल. यू हैव टू स्ट्रगल टू बी हैप्पी. चैंटिंग हरे कृष्णा इटसेल्फ इज अ बिग स्ट्रगल. नामाचार्य हरिदास ठाकुर बनने के लिए उतना सुलभ नहीं है. हम लोग जगन्नाथपुरी में गए, 192 राउंड्स. नाम रुचि एक ऐसा है, ऑफ कोर्स नकल तो नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट वी हैव टू एस्पायर टू रीच टू दैट लेवल. क्योंकि हमको पता है ऐसे ही, क्योंकि देखिए दिखने के लिए भगवान का नाम तो क्या है, सिर्फ 16 अक्षर का नाम है. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कुछ फीस पे तो पूछे नहीं है, कुछ क्वालिफिकेशन भी नहीं है, कुछ कान में बोला हुआ मंत्र नहीं है, सिर्फ गुरु ने दिया हुआ. एनीवन कैन चैंट. राष्ट्रभेद, कोई जाति भेद ना है, कोई राष्ट्रभेद ना है, एनीवन कैन चैंट. पर क्यों इतना मुश्किल हो रहा है? व्हाई इट इज सो टफ? क्यों इतना तकलीफ हो रहा है? क्योंकि भगवान और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है, अभिन्न है. वो बोलते ना, अभिन्नत्वम नाम नामिने. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लॉर्ड एंड हिज नेम. तो अगर भगवान के नाम के साथ आप संग करना चाहते हो, उतना योग्यता होना चाहिए.
टू बी विद गॉड इज नॉट सो इजी. भगवान के साथ रहना, उनके साथ संग करना हमारे पास वो तो योग है. टू डील विद फायर यू शुड बी स्टेरलाइज्ड, नहीं तो हम जल जाएंगे. इसलिए वो स्टेरलाइजेशन प्रोसेस के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है. जो साइंस स्टूडेंट्स उनको पता है स्टेरलाइजेशन क्या रहता है. यू हैव टू बी सो, उतना कितना प्रयास करें. वो जब बोलते ना लोखंड को वो स्टेरलाइजेशन हो जाता है तभी वो अग्नि का क्वालिटी आ जाता है. उतना समय अग्नि में जलाना पड़ता है. इसलिए चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी के लिए वो स्टेरलाइजेशन प्रोसेस है. उतना अनर्थ निवारण करते करते, इसलिए रूप गोस्वामी बोलते अधाम श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति और रुचि आने के लिए. बट यू जस्ट हैव टू कंटिन्यू. भक्तों के संग में रह के वो कॉन्स्टेंटली सुनते सुनते अटल विश्वास रख के नो दिस प्रोसेस विल लीड, दिस प्रोसेस विल लीड. और मेथड्स दिया है हाउ टू चैंट, हाउ टू कीप. इतने साल से हम कर रहे, नाम तो रुचि आया ही नहीं है. चैतन्य महाप्रभु gives a very simple process, very simple process. Anyone knows what is the simple process? मैंने बहुत बात किया कि आपसे बोलिए what is the simple process to chant Hare Krishna mantra? What is the simple process? सबसे सुलभ मार्ग क्या है जाप करने के लिए? Yes, माताएं, प्रभुस. What is the simple method to chant Hare Krishna? Then you will get the taste. Regular करना. जा रे देखो तारे करना. Very good, that's nice. But what is the simple, what mood should be there so that you can slowly attain chanting taste for the holy name? What is the mood? किस भावना से हमें जाप करना चाहिए? द्रौपदी. What was the Draupadi's mood? Helpless. Helpless कभी हो जाता है जब हम अपने आप को तुच्छ समझते हैं. I am nothing. भगवान आप ही मेरे सर्वस्व हैं. इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताते थर्ड वर्स of शिक्षाष्टकम. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. Humble state of mind. ये मिथ्या अहंकार को भागो हटा दो. I am something great. Humble state of mind. I am great. I am qualified. I am Brahmin. I am this. Everything is बोलते ना bogus. वो सब stupidity है. Humble state of, one should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. एकदम में कुछ भी नहीं हो. Humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street, more tolerant than a tree, offering respect to everyone without expecting any respect in return. In such a state of mind, वो दृष्टि से जो व्यक्ति भक्ति जाप करने लगेगा, then he can chant the holy name of the Lord constantly. ये हमारा एस्पिरेशन है. कृष्णा एक नाम आपने दिए. Why ये शास्त्र? Because when a person understand, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे पता है इसमें भगवान के शब्द हैं. वो भावना से जब हम वो पुस्तक खोलेंगे और विचार विमर्श उनकी शरणागति में जब, तभी भागवत हम बताने लगता है. We develop taste for hearing कृष्ण कथा. हमें टेस्ट आ जाता है हरि कथा, हरि नाम सुनने के लिए. नहीं तो इट्स जस्ट ओके कर रहे. दैट्स नॉट अ गोल. शुरुआत में ठीक है, एस्पिरेशन शुड बी आई शुड डेवलप द टेस्ट फॉर कृष्ण कथा. मुझे कैसे भी भगवान के प्रति रुचि आना ही चाहिए. मुझे भगवान के प्रति और भक्तों के संग में जब हम आ जाते, वो स्थिति में जब हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं. इसलिए जब कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड, एवरीवन वांट्स ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड जब कभी पता चलता है जब हमें अपने आप को पता चलता है कि मेरा क्या पोजीशन है. आपने मुझे एक नाम दिया है, दैट इटसेल्फ इज अ काइंडनेस. मुझे भगवान आप मेरे को भक्तों के संग में लाए हो जिसका एक ही उद्देश्य है इस भक्ति में प्रगति करना. इनका तो बाकी कोई हित मतलब कि हेतु नहीं है. अभी यहाँ पे सभा में कोई भी ये संबंध नहीं लोग जुड़े कि हाँ वो आए, जैसे हाँ भरत निताय प्रभु आए क्या रूपेश प्रभु या जो भी या अर्णव प्रभु जो भी, ये संबंध नहीं कि इनसे मुझे क्या कुछ फायदा क्या है. थोड़ा संबंध है तो मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा या समथिंग आई एम अल्टीमेट. देन दैट इज नॉट प्रॉपर रिलेशनशिप. योर ओनली रिलेशनशिप
कि मैं भी भक्ति में प्रगति करना चाहता हूं एंड आई वांट योर हेल्प एंड यू आल्सो रिक्वायर माय हेल्प। वी बोथ आर एंकरिंग टू अटेन लोटस फीट ऑफ कृष्णा। आवर गोल इज वन। बोलते ना कभी कभी पत्थर में हम एक ही जगह पे नदी में अगर एक ही जगह पे पत्थर फेंकते हो तो एक ही टाइप का सर्कल बनता जाता है, पर अलग अलग जगह पे वो एक दूसरे का बोलते ना सर्कल को तोड़ देता है। उसी तरह कृष्ण भक्ति में आने का सभी व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होना है। व्हाट शुड बी द गोल? अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्थानुस्थितस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषणम। My only goal of life is to please Krishna. That should be our goal. मैं जो कर रहा हूं, whether I am pleasing God, ये important है। सभी व्यक्ति का मैं जो कार्य कर रहा हूं लोगों को पता नहीं है, पर अंतरात्मा में कृष्ण को पता है। Are you pleasing me? तुम जो कार्य करो मुझे संतुष्ट हो रहा है, बाकी लोग के आंखों में धूल झोंकते हैं, उनको पता नहीं है, बट आई नो व्हाट इज योर मोटिव। अगर ये उद्देश्य है देन दैट इज प्रॉपर एसोसिएशन। वो सभा आना बराबर है, एवरीवन वांट्स टू प्रोग्रेस, तो ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए। तो आज आई एम स्टॉपिंग दिस कथा। परीक्षित महाराज वही बताते हैं कि द गोल ऑफ लाइफ हाउ शुड इट। इस कृष्ण भक्ति में वो शुरुआत में ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुझे यही बताएं कि कैसा एक कर्म चक्कर से निकलना चाहिए। एक्चुअली एक है, एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए भक्ति के मार्ग में। कभी कभी जैसे बोलते ना बहुत समय होने के बाद कभी कभी हमें अहंकार आ जाता है कि मैं बहुत कुछ जान लिया हूँ, इतने साल से तो भक्ति कर रहा हूँ, आई एम अ सीनियर डिवोटी। तभी क्या हो जाता है, तभी हमें ये प्रश्न के ऊपर ज्यादा रुचि नहीं रहता है, अरे मैं सब जानता हूँ। बट प्रॉपर बताते one should always consider oneself a neophyte in Krishna consciousness. I'm just a beginner. 20 साल हुआ, no still I'm a beginner. मैं अभी जानता हूँ, मुझे कुछ भक्ति के बारे में जानता नहीं है। I'm a beginner. आप अभी आए, still I know, you know much more than me. हर व्यक्ति को ये नहीं कि ये जूनियर है मैं सीनियर हूँ। Everyone has got realization. ये जन्म में हम सीनियर हो सकते हैं, पर वो वक्त पहले जन्म से है। बोलते नेहा विक्रम नास्ति प्रत्यव्याय विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायति महतोभय। उनका तो 99% से उनका भक्ति हो चुका है, उनको थोड़ा सा है 1% से, या उनका ये 1% के लिए तुरंत आ चुके। और हमारा भक्ति यहाँ से शुरू हुआ होगा ये जन्म में, we may only 10%। इसलिए never one should think that I am senior. Everyone is प्रभु मैं दास हूँ। ये जब भावना रहता है तो देन अ पर्सन विल डेवलप टेस्ट फॉर कृष्णा, तभी रुचि आएगा। नहीं तो ये सब्जेक्ट को या बस हो गया, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, बहुत हो गया भागवतम सुन लिया, बहुत हो गया जाप करके, आई वांट अ ब्रेक। बोलते ना ऑफिस वर्क से थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो वही का क्योंकि मैटर है। पर स्पिरिचुअल में ब्रेक मतलब देयर इज नो ब्रेक। उसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, देयर इज सम डिसीज, ब्रेक इज विद इन। तो उस टाइम यू शुड फाइंड इट आउट, अरे व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग टेस्ट फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो उस समय जब मैंने कॉन्स्टेंटली अंडरस्टैंड बोलते नहीं इंट्रोवर्शन और सोच समझ कर विचार करते हैं, तभी हमें पता चलता है भक्तों के संग में देन वी कैन डेवलप टेस्ट फॉर कृष्ण का। तो आज इस भागवत में ऑफकोर्स ये टाइम बहुत कम लोग हैं, नो प्रॉब्लम, पर आज हम समय जाप को महत्वपूर्ण देते और इस भागवत कथा को विश्राम दे के हम कीर्तन करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछेंगे या बहुत पूछाएंगे। वेरी नाइस क्वेश्चन। रुकेश बाबू पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डीप इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। डीप जाना चाहिए, डीप 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 और डीप मतलब श्रील प्रभुपाद बताते हैं नो फॉरगेटिंग कृष्णा एट ए सिंगल मोमेंट, दैट इज कॉल्ड डीप इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। नॉट इवन फॉरगेटिंग कृष्णा, भगवान को एक मिनट भी भूलना नहीं चाहिए, दैट इज डीप। उसका उदाहरण देते हैं,
बोलते हैं आपने समुद्र में ये देखा है ना, मछलियां, जब मछुआरा वो बोलते ना वो फेंकता है, जाल फेंकता है, तो मेजॉरिटी उसमें कौन से मछलियां आ जाते हैं? जो ऊपर ही ऊपर बोलते ना स्विमिंग करते हैं, उन लोग को ही पकड़ा जाता है। पर जो डीप सागर में है उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। उसी तरह ये भक्ति के मार्ग में कभी कभी बोलते ना, यार माया अटैक कर दिया है, माया में गिर गया। उसका मतलब क्या है? माया किसको पकड़ती है? वन इज नॉट डीप इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो कॉन्स्टेंटली उसका दिननित्य उसका प्रयास यही है कि आई डोंट वांट टू फॉरगेट कृष्ण इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट। वो व्यक्ति इज अंडरस्टैंडिंग इज डीप इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। मतलब उसको इतना रुचि के लिए प्रयास कर रहा है, उतना रुचि आ चुका है कि उसको कृष्ण का सब्जेक्ट छोड़ के उसके पास कोई विषय अलग भौतिक सब्जेक्ट ही नहीं है। वो जो कार्य कर रहा है वो भी आध्यात्मिक है, जो बोलता है वो भी आध्यात्मिक है। दैट इज डीप कृष्ण कॉन्शियसनेस, नॉट टू फॉरगेट कृष्णा इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट। अगर ये हमारे प्रयास कर रहे हैं या ये आ चुका है, दैट मीन्स यू आर इन द करेक्ट पाथ। आप यही प्रयास करो, गॉसिप आई डोंट वांट, जैसे बोलते हैं ना वर्ल्डली टॉपिक्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक बार प्रभुपाद को उनके सहपाठी और उनके जो मित्र बोले, चल चला भाई थिएटर जाते, थिएटर चल। नहीं यार एक बार, हाँ ठीक है तू वैष्णव है, तू सब कुछ है, एक पिक्चर देखने में क्या होगा? तो प्रभुपाद को जबरदस्ती लेके गए एंड प्रभुपाद सैट एंड देन देखे और तुरंत वहां से उनको बोले मैंने निकल के वापस आ गए। बोले आई डू नॉट हैव टेस्ट फॉर ऑल सच वर्ल्डली मैटर्स। मुझे ये टेस्ट निकल चुका है। अगर हमारे पास अभी भी भौतिक का टेस्ट है, दैट मीन्स वी डू नॉट हैव डीप कृष्ण कॉन्शियसनेस। और अगर नहीं है तो भी आर वी डिजायरिंग टू बी, इच्छा है हमें कृष्ण कॉन्शियस में डेप्थ जाना। मुझे नहीं चाहिए भौतिक इच्छा, मुझे भौतिक कार्य के अंदर कोई करना नहीं है। दैट मीन्स अ पर्सन इज वेरी डीप इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये हमारा गोल है, टू कॉन्स्टेंटली रिमेंबर कृष्णा एंड नॉट टू फॉरगेट कृष्णा। स्मर्तव्यस्य विष्णु, there is one verse is there, not even to forget Krishna, always remembering Krishna. अगर ये हमारे पास एस्पिरेशन है, then that is deep in Krishna consciousness. और तभी माया हमें बोले ना झपटिया धरी, कृष्णा को बोले तो माया तारे झपटिया धरी, तुरंत there is no बीच का मार्ग नहीं है। either you are in Krishna conscious or either you are in Maya. ओके, बीच का कोई मार्ग है? ओ अभी न्यूट्रल स्टेज, there is no neutral stage. You are not serving Krishna, you are serving Maya. So person better, इसलिए एक वर्ड है बाइबल में, either be too hot or too cold. Don't be just बोलते ना न्यूट्रल स्टेज। अगर भक्ति में लेना है तो सीरियसली है, नहीं थोड़ा उधर का भी चाहिए इधर का भी चाहिए, वो नहीं चाहिए। शुरुआत में होगा पर इच्छा तो होना चाहिए मुझे भक्ति में सीरियसली लेना है। अदरवाइज इट्स सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम पास। बोलते ना यू आर देयर बट यू आर नॉट देयर। अगर ये जन्म में क्लियर करना है, does that answer? Anything else? We can chant.